وزیر اطلاعات توسعات و انفارمیشن ٹیکنالوجی مشتاق منہاس نے باغ میں پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے چیئرمین راجہ محمد صدیق کی شمولیت کے موقع پر باغ میں صحافیوں سے گفتگو کی اور گفتگو کے دوران مشتاق منہاس نے کیا کہا، سنیے مشتاق منہاس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اراکین پریس و الیکٹرانک میڈیا، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ بڑی مختصر دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ضلع باغ اور وسطی باغ کی بالخصوص تاریخ میں یہ آج بڑا اہم ایونٹ ہے، اور اس کی غرض و غائز یہی ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے ویٹرن، ہمارے وسطی باغ کے سرکردہ سیاسی رہنما، یونین کونسل بنی بساری کے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق صدر اور ممبر ڈسٹرکٹ کونسل، چیئرمین یونین کونسل اور ایک انتہائی اہم شخصیت راجہ محمد صدیق صاحب آج ہمارے ساتھ اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون میں ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں آج۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ کا اور خاص کر کے وسطی باغ کا سارے سیاسی کارکنوں کے لیے مسلم لیگ نون کے ایک بڑا آج اہم دن ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں راجہ محمد صدیق صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کو۔ علی زمان صاحب ہیں اس میں، باقی ساتھی یہاں پر اپنا ان کے نام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ وہ ہمارے سیاسی قائدین ہیں جن کا بستی باغ کی صرف کسی ایک وارڈ یا کسی ایک پولنگ اسٹیشن تک کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ راجہ صدیق صاحب وہ شخصیت ہیں جو 1985 سے لے کے آج تک جو بھی بستی باغ کے اندر کسی امیدوار کی جیت یا ہار ہوئی، اس میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنے والے، کوئی گرے ایریا نہیں ہے، لائن کے اس طرف کھڑے رہنے والے تھے۔ میں ان کے پاس جب گیا اس وقت یہ کرن سنگھ صاحب کے ساتھ ان کی وابستگی تھی۔ انہوں نے مجھے بالکل دو ٹوک انداز میں یہ بتایا کہ بھائی میں ان کے ساتھ ہوں، اور میں نے اس لیے ان کی قدر کرتا ہوں کہ ایسی شخصیات اب سیاست میں بہت کم ہیں۔ میں راجہ امتیاز تاج صاحب اور سردار عاطف نعیم اور باقی جو ساتھی ہیں، سردار مختار صاحب ہیں، ابرار چغتائی صاحب ہیں، باقی ڈاکٹر ویر صاحب ہیں، سردار الیاس صاحب ہیں، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس شمولیت کے موقع پر وہ آ جائے۔ تو انہوں نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا، اور ہم نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح اپنے بزرگ کی حیثیت سے اپنی عزت جاری رکھی۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ دوسری جماعت کے، کیونکہ ایسے لوگ جو سیاست میں چاہے کسی بھی جماعت میں یہ مشترکہ اثاثہ ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے بھائی انسپیکٹر ریٹائرڈ راجہ مشتاق صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا پورا وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو دیا، اور یہ انہی کی شبانہ روز کافشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بریک تھرو کرنے کے میں کامیاب ہوئے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ ساتھیوں کا، راجہ ذوالفقار صاحب ہیں، سعید انقلابی اور باقی ہمارے ساتھی موجود ہیں یہاں پہ، سردار جاوید چیئرمین بی ڈی اے مسلم لیگ، یہ ڈسٹرکٹ باغ کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تینوں حلقوں کے اندر آج 4 سال کے بعد لوگ جو ہے وہ لوگ اپنے ساتھی آپ سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے خوشی ہے اور میں ایک مرتبہ پھر راجہ صدیق صاحب کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ اپنی اس عزیز کے سر پر انہوں نے ہاتھ رکھا۔ پاکستان مسلم لیگ یہ ان کی اپنی جماعت ہے، یہ کوئی اس جماعت میں نئے نہیں ہے، یہ مسلم لیگ کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے آزاد کشمیر میں۔ تو میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ایک مرتبہ پھر سٹیج جو ہے وہ واپس ارشاد شجاع آبادی کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ اس کو مزید پروسیڈ کرے۔ جناب مشیر حکومت، منسٹر حکومت مشتاق منہاس صاحب، صحافی حضرات، سعید انقلابی صاحب، ذوالفقار علی صاحب اور میرے عزیز امتیاز صاحب اور پرویز صاحب
बसम साहब हाथ हल्का रखे हमारे घर ढूंढ खा आए नहीं आए परवेज हसन है मेरा नाम था। सही बात है। परवेज हसन शबीर साहब परवेज तो बसन है। ये तमाम साफी जो है ना पुराने मेरे साथी हैं और मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मैं मुस्लिम लीग नून का यूनियन काउंसिल वाली बसारी का सदर था और किसी वजह से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और गोशा नशीन हो गया। उस गोशा नशीनी ने जो है मेरे गांव का बेड़ा कर दिया। बड़े मेरे गांव में 90% लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं लेकिन को इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे आखिर में जाकर इस बीमारी हालत में जुल्फकार साहब ने, शहीद इनकलाबी साहब ने और मेरा भाई जो छोटे इंस्पेक्टर मुश्ताक साहब है, इन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि मुझे चारपाई छोड़नी पड़ी और मुश्ताक मनाज साहब के दरबार में हाजिर होना पड़ा। मैं खुशामद बहुत कम करता हूँ, मुझे पुराने लोग बहुत जानते हैं। ये डॉक्टर सलीम मनाज साहब की खुशी भी पूरी की हमने। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं वापस अपनी जमात में आया हूँ और मैं तमाम तर जो सलाहियत है अपनी वो मुश्ताक मनाज साहब को वक़्फ़ करूँगा इंशाअल्लाह और कोशिश करूँगा। बाकी जो उस दिन ये मैंने ये देखा कि 36 साल हो गए मुझे सियासी लोगों के साथ चलते हुए। 36 साल बड़ा पीरियड है 36 साल। लेकिन जितना प्यार और मोहब्बत लोगों का मुश्ताक मनाज साहब के साथ है ऐसा किसी के नहीं देखा। मैं सर सैदा में गया, उधर मैंने तामीर और तरक्की का काम देखे और फिर जगह जगह से मैं रिपोर्टें लेता रहा। इन्होंने बिना इम्तियाज हर इलाके की तामीर और तरक्की की, इससे मैं मुतासर हो गए। फिर भी साथी हजरात का बहुत शुक्रिया और परवेज तबस्सुम आपका मुझे खतरा रहता है ये असल में दो तबस्सुम साहब और परवेज साहब दो मिला के उन्होंने बैठे हैं ना सर। ये एक दफा नहीं ये बेचारा इनका मैं बात करूंगा इनकी जो तो ये मुझे थी मेरी गुजारिश आप हौसला रखें। मुश्ताक मनाज साहब इस खादम की जान भी हाजिर है, खून भी हाजिर है, माल भी हाजिर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो मेरे दोस्त के बेटे खड़े हैं और हम बैठे रहे बहुत अर्सा। ये जो अपने जावेद साहब ये हमारे पुराने साथी है। बड़ा हमने पीरियड काटा है। तो मुश्ताक साहब मैं आपसे वादा करता हूँ, दूसरी गुजारिश आपसे ये कहता हूँ, कोई आदमी बाजू तोड़ कर दूसरे के हवाले नहीं करता, लेकिन ये मेरा भाई इंस्पेक्टर मुश्ताक आपके हवाले है। मैं चलने फिरने के कासिम ये आपके हवाले आप बाकी जो साथी हैं रिजवान भाई हैं जो ये बहुत बड़े हमारे 28 साल ये पूरी कमिटमेंट है वो आप खुद बात करें। राजा मुश्ताक साहब मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, अभी आवाज़ आ रही है? मशकूर हूँ साफ़ी हज़रात का और शुक्रगुजार हूँ अपने भाई अपने मोहसिन मिनिस्टर साहब का। मैं तो इनके साथ था ही, इनकी शख्सियत ऐसी है। एक मुख्तसर सी आपको मैं बात बताऊँ कि जब मैं इंस्पेक्टर प्रमोट हो रहा था उस वक्त ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे। आज सच इनको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। बैरिया टाउन में हमारी मुलाकात हुई, मेरे अपने अस्ती साहब थे उनके साथ, उनका कोई काम था। उन्होंने फ़ोन किया, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर थे खालिद सुल्तान। फ़ोन करने का जो इनका स्टाइल था, जो काम करवाने का स्टाइल था, तो मैं हैरान हो गया। सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। काम मेरे एसपी का हो गया सेकेंडों में। वापस हम बैरिया टाउन आए, इन्होंने चाय वगैरह पिला के तो ये कहा कि मुश्ताक मेरा ये प्रोग्राम है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई। मैंने 2 साल पहले, मैं वल्लाह सही बात आपको बताऊँ, 2 साल पहले
हालांकि पुलिस में जब बंदा इंस्पेक्टर बनता है तो मज़ा उसी वक्त आता है। 2 साल पहले मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली और इनको बताया कि इंशाअल्लाह ताला आपका ये भाई आपके साथ रहेगा। माशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से मेरे बड़े भाई थोड़े सख्त भी होते हैं, मुमकिन आप लोग जानते होंगे, बिलखुसूस परवेज साहब इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर इनको मैंने बताई सारी सूरत, मेरी फैमिली के ऊपर इनका बहुत बड़ा आसान था। इनको सारी सूरत बताई, इन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, एक तरफ भी लेफ्ट भी मुश्ताक, राइट भी मुश्ताक, बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। फिर इन्होंने पूरे बस्ती हल्के का जायजा लिया। जब इनको तसल्ली हुई कि तामीर और तरक्की किसको कहते हैं और किसने करवाई है, 35 सालों का और इन 4 सालों का तकाबली जायजा लिया, तो इन्होंने खुद बुला के मुझे कहा कि मुश्ताक साहब को मेरा मैसेज दो कि मैं उनके साथ शामिल होना चाहता हूँ। मैं जिसके लिए आपने मेरे भाई साहब जिन्होंने वालिद की तरह मुझे पाला, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इस तरह अलीज़ मोहम्मद साहब 24 साल तक जमात इस्लामी में रहे। इनसे मेरी बात हुई पिछले साल, मैंने इनको कहा कि हमारे गाँव की पसमानदगी का वाहिद सबब यही है कि हमने वक्त पे सही फैसले नहीं किए। तो आपका क्या ख्याल है? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अपने भाई का मशकूर हूँ, वो खुद भी बात करेंगे कि परसों जब मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गए मखदूमकोट के दौरे पे, इन्होंने भी ऐलान कर दिया। इस तरह मेरे साथ 50 आदमी थे जिनकी को मैं फहरिस्त नहीं ला सका। अबराज चुगताई के साहब के पास है, मैंने उनको व्हाट्सएप किया था। जो लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं उनमें राजा सिकंदर खान साहब हैं, शेर मखदूमकोट राजा अब्दुल करीम साहब हैं, मेरे कज़न राजा मोहम्मद अकरम साहब हैं, उसके अलावा राजा नसार आजम हैं और राजा मिस्किन जंजुआ हैं, राजा अरशाद हैं। इस तरह 12-15 आदमी इस वक्त तो आज वो पूरी फरिश्ता साफी हजरात आपको इंशाल्लाह मुहैया करेंगे जो जिन जिन लोगों ने वहाँ ऐलान किया है। तो मैं मुख्तसरन मैं दिन रात इंशाअल्लाह ताला, मैं तो पहले ही आपके साथ था, ये तो रस्मी बात थी सारी, मैं शब और रोज़ मेहनत करूँगा अपनी जमात के लिए और अपने कायद के अतमाद को हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह ताला शब और रोज़। मैं आप सबका मिनिस्टर साहब आपका बेहद मशकूर हूँ। आप लोग तशरीफ लाए, मिनिस्टर साहब का बिलखुसूस शुक्रिया जिन्होंने इतनी तकलीफ दी और हमें वक्त दिया। हमारे न्याज काबिल साहब प्रेस क्लब के जो इंतजाम है, साथी हजरात और सईद इनकलाबी साहब एडमिनिस्ट्रेटर बाग गंदिया इलाहाबाद, जुल्फ़िकार एडवोकेट साहब, ताहिर अब्बासी साहब और हमारे भाई कारी जमा साहब, खुर्शीद आलम साहब जगड़ी से और अबराज चुगताई साहब, सबका नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, इनका नाम मुझे नहीं आता, मैं बात करता हूँ। मैं एक छोटा सा कारकुन था, जमात इस्लामी का मेरा तल्लुक़ है। सन 1996 में मैंने पहला इलेक्शन में लड़ा था, उनके साथ आया था और पहला वोट मैंने दिया था। वहाँ से लेकर आज तक मैं उनके साथ रहा हूँ और जमात इस्लामी का एक बड़ा नाम है, एक इस्लामी जमात है, एक इस्लामी तहरीक है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। अब्दुल शेख रबी साहब का मैं जब तक ज़िंदा हूँ एहतराम करता रहूँगा और किया भी है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। उनसे हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। तो ये जो इलेक्शन हुआ तो हमारा जमात इस्लामी का और नून लीग का इताद हुआ, तो जो हमारे कायद अब्दुल शेख रबी साहब ने हमें कहा तो हमने उस पर पूरा लबैक कहा और उस दौरान हमारा इताद अभी तक जमात इस्लामी और नून लीग का इताद बराबर है, चलता है। उस अवस्था से जो हमारे काम हुए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जो 35 साल पहले हमारी एक वोट निकली थी, तो 35 साल के बाद पहली मरतबा अल्लाह ताला मुश्ताक मुनासिब साहब को दिन दुगनी और रात चुगनी दे कि 35 साल के बाद हमारी उस मेन रोड पे काम हुआ और उस वजह से हम मुतासर हो गए और अभी जो काम बाकी हैं उनकी वजह से भी हमें ये जहन में ये बातें सोची हैं कि इनके अलावा हमारा मखदूमकोट की पसमानदगी को दूर नहीं कर सकता और इनके आला ज़र्फ़ी देख के
तो मैं भी इनके साथ शामिल होने का इरादा कर लिया और आइंदा भी 24 साल में इनके साथ रहा हूँ और द्रविड़ साहब के साथ रहा हूँ और आइंदा इंशाल्लाह जो भी 28 साल जो मेरी ज़िंदगी का बदली है, लेकिन इंशाल्लाह मैं छोटा भाई एक सिपाही होने की हैसियत से इनकी जगह हर जगह इनके साथ रहूँगा। तो मैं सब साफ़ी हजरात का इस क्लब में जो इंतज़ामी उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये महसूद भाई हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मामा मेरे साथ बहुत मेहनत की और ख़ास करके जो मुश्ताक साहब मेरे बड़े भाई चेयरमैन सदीक साहब जहाँ ये रहते हैं हम इनके साथ चले जाते हैं, किसी भी जमात में हूँ हम इनकी सपोर्ट करते हैं। हमारे बड़े आदमी बुजुर्ग हैं, इनकी बहुत सारी हमारे इलाके के लिए कुर्बानियाँ भी हैं ज़लज़ले के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें। जब ये जिस जगह चले जाए तो हम पीछे नहीं रह सकते। मेरे बड़े भाई शेर मखदूम कोट अब्दुल करीम साहब 45 साल से वो मौसम कॉन्फ्रेंस में रहे हैं। अभी थोड़े अर्सा पहले वो कैमरा साहब के साथ थे, तो वो भी आज और उसी दिन उन्होंने ऐलान कर दिया। इसी तरह मेरे बहनों ही अकरम साहब, हाजी जब्बार साहब, परवेज साहब और फयाज साहब, एक बहुत बड़ी मखदूम कोट से जो मेन टीम है मुश्ताक मन्हास साहब, वो आपके साथ आ गई है। बढ़कर मारने से तो कुछ नहीं होगा, ये वक्त आएगा ग्राउंड पे पता चलेगा कि इंशाल्लाह मखदूम कोट की जो कारकर्दगी है वो इंशाल्लाह कितना रंग लाएगी। तो जो हमारे मामलात हैं भी सब कुछ ये पसवंती पूरे बस्ती हल्के और शक्की हल्के के जो लोग और ज़िला बाग के ये मखदूम कोट सबसे करीब तीन इलाका है जो 7-8 किलोमीटर पे मुश्तमिल है। आज तक हम रोड पे पैदल हमारी बच्ची हैं, माएँ सरों पे मोटरी उठा के और झोली में ये बच्चे उठा के चलते हैं तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं और सर ऊपर उठाने के काबू नहीं रहते हैं। तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि ये जो मामला हमारा ये ऐसे मुश्ताक मन्हास साहब हल कर सकते हैं, इससे अलावा हमारा मामला हल होना मुश्किल है। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने बड़े मौके पर कुछ अल्फाज कहने का मौका दिया, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और किसी बात पर अगर कोई गलती हो तो मैं सबसे माजर करता हूँ। हमारा जो हमारे कायद चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम कश्मीर वज़ीर हुकूमत, उनका बिलखुसूस मशहूर है कि उन्होंने बहुत अहमी दौरे शुरू किए। और सच्ची बात यह है कि जब ये इलाके में गए उन्होंने इफ्तिताह शुरू किए तो हमने कोई 2 लाख 3 लाख 5 लाख 8 लाख रुपए की स्कीम का कोई ना संग बुनियाद तो ना इफ्तिताह किया। हमारे पास करोड़ों आके मनसूबा जात इस तरह के हैं जो उन्होंने मेरे गाँव से उसका आगाज़ किया। और कोई ऐसा गाँव वार्ड हम चैलेंज करते हैं और आज भी करते हैं और कल भी इंशाल्लाह करते रहेंगे कि ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जहाँ हमारी निशानी मौजूद हो। मैं आज के इस फोरम पे जनाब मुश्ताक मन्हास साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एडवांस मुबारकबाद इसलिए करता हूँ कि जब ये इलेक्शन में आए थे तो बहुत लोग कहते थे कि ये कौन से दाखिल होंगे, कैसे लेंगे, क्या होगा। और आपने देखा कि 26,000 का बहुत बड़ा मैंडेट है और वो उन्होंने लिया। और जो रफ्तार और जिस स्पीड से हमारे पास ख्याल ये था हमारा, आप तमाम हजरात से माजरत भी करता हूँ, प्रेस वालों से भी, कारकुनान से भी, कि ये सिंगल फ्री लोग खड़े हैं कि ये चूँकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास इससे बड़े हाल मौजूद नहीं, तो हमारा ख्याल ये था कि 10-20 लोग होंगे। और ये जिधर भी ये जाते हैं रात के 10 बजे 12 बजे भी जहाँ पहुँचते हैं तो यकीनन आप देखते होंगे कि इनके साथ बड़ी रेफरी है। बल्कि आज के इस प्रोग्राम की वसादत से प्रेस के तमाम दोस्तों को मैं दावत भी देता हूँ कि 12 तारीख को, 13 तारीख को, 11 तारीख, 12 को मलोट, 13 को जगलड़ी और 14 को कोठियाँ। 14 को कोठियाँ। और हम कोशिश करेंगे कि आपको पिक एंड ड्रॉप की पूरी सहूलत मुहैया करेंगे। तो आप चलें हमारे साथ ताकि आप खुद अपनी आंखों से भी कोई चीज़ें ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिकली देख सकें। तो मैं एक दफ़ा फिर जो हमारे बुजुर्ग जनाब राजा सदीक साहब, ये वो लोग हैं कि जो राजा, इनकी उम्र ये सेहतमंद बज़ाहिर तो आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये 80 इनकी एज है, 80 साल है। और पूरे जिस जज्बे के साथ और सारे हमारे ये बुज़ुर्ग हैं, मुश्ताक साहब हमारे जो दोस्त बार मखदूम कोर्ट से शामिल हुए, एक एक फ़र्द का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। और हम ये उम्मीद ये कहते हैं कि आप फ्रंट लाइन पे होंगे, हम आपके पीछे होंगे। और ये किसी लालच की बुनियाद के ऊपर नहीं। मखदूम कोर्ट के अंदर इस वक्त 1 किलोमीटर रोड पुख्ता अल्हम्दुलिल्लाह आपने दी है। और वो बेल्ट ये ऐसी बड़ा हदूद अरबा है मखदूम कोर्ट का कि 5 किलोमीटर के ऊपर यहाँ से है, लेकिन ये सबसे पसमानदा तरीन है। यानी भुट्टी हमारा अटाला आखिरी स्टेशन है, वो एज़ कम्पेयर वो बेहतर पोजीशन में है। तो यहाँ अगर सरी टू मखदूम कोर्ट जाएँ या टंगियार टू मखदूम कोर्ट जाएँ या पनेरी टू मखदूम कोर्ट जाएँ तो वो चारों तरफ से जो है ये कच्चे 2-2 किलोमीटर स्पेन जो है वो मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुश्ताक साहब ने आती जहाँ पूरे इलाके में तमाम बरादरियों, टबरों, पीरों और हर रंग नस्ल का शख्स ये समझा है कि
को पकारेंगी। हमारे हुसैन वाली बात है यहाँ भी कि हर जो है बरादरी क्लब बिला ये कहते हैं कि हमारे हैं मुश्ताक, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है इनके ऊपर, ये अल्लाह का फजल करम। और इंशाअल्लाह ये लोग उकता जाते हैं इलेक्शन के करीब आके, तो यहाँ उकताने वाली बात ही नहीं है, बल्कि हमारे सीनियर तरीन यहाँ दोस्त अहबाब खड़े हैं। सच्ची बात यह है कि यहाँ पे हम हैं मुश्ताक, वो है मुश्ताक, हम हैं क्या कहते हैं, वो है बेदार, या इलाही ये माजरा क्या है, बहुत बड़ी रफ्तार से जो है लोग शमूलियत का सिलसिला जो है वो जारी है सारी। और वो हम उस तरह से प्रेस वालों को, मीडिया को, फेसबुक पे तो आप देखते हैं जो कोई चीज़ ऐसी हाईलाइट भी नहीं होगी। मैं एक दफ़ा फिर जनाब जुल्फ़िकार एडवोकेट साहब था, खुर्शीद आलम साहब मौजूद हैं, आतिफ साहब मौजूद हैं, हमारे सरदार मुख्तार साहब मौजूद हैं, सलीम चुगताई साहब मौजूद हैं, अबरार चुगताई साहब मौजूद हैं, सलीम साहब हैं, डॉक्टर साहब, और बहुत प्यारे साथी हजरात, और मेरे प्यारे भाई जावेद साहब, ये भी हमारी तरह जज्बाती हैं, लेकिन यकीनन डे नाइट जो है यहाँ जो है वो काम करने वाले एक एक फ़र्ज़ का शुक्र। और मैं आपसे एडवांस ये माजरत भी करता हूँ कि उस तरह का आपने आपकी शहर शान यहाँ बैठने का हम इंतज़ाम नहीं कर सके, उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। वाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब के मेहमान खुसूसी और हमारे गायद मुस्लिम यूनियन के चीफ ऑर्गेनाइज़र और वज़ीर इत्तलात नशरियात जनाब मुश्ताक मिराज साहब, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे भाइयों और माज़िन इलाका और बिलखसूस चेयरमैन सदीक साहब के साथ जो लोग तशरीफ़ लाए, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको खुशामदीद कहते हैं हम। गुजारिश ये है कि मुश्ताक साहब की बात के बाद तो वो क्या कहते हैं कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, वो कि हम भाई हैं और हम कॉलेज फेलो हैं, हम कॉलेज में इकट्ठे रहे हैं, साथी हैं, उम्र में थोड़े से हमसे ये कम शायद होंगे, तो वैसे हम साथी रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको बड़े अक्ल व दानिश से नवाजा है, बड़े ज़र्फ़ से नवाजा है, और इन्होंने माशाल्लाह मेहनत भी बड़ी की है अपनी लाइफ में। तो कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। मुश्ताक साहब ने माशाल्लाह अपने जहानत और अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाया, और फिर इन्होंने जिस चीज़ का इंतखाब किया उस पर हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, दिल की अथाह गहराइयों से इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इनके लिए फील्ड पूरा हमारा मुल्क ममलकत दादाद पाकिस्तान वो इनकी फील्ड थी, वो इनका आप कह सकते हैं कि पूरे मुल्क में ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, और इनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजना था। उधर भी ये शायद इससे भी बड़ी इज़्ज़त से अल्लाह पाक किसी पोर्टफोलियो से नवाज सकते थे, लेकिन ये इनकी मेहरबानी। और मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने तो अपनी फितरत के मुताबिक कि अपने जिस इलाके से, जिस ओरिजिन से जिसका ताल्लुक होता है, उससे इन्होंने ताल्लुक जोड़े रखने के लिए अपने बाग का और अपना हल्का इंतखाब का इन्होंने इंतखाब किया। इस पे मैं सच्ची बात यह है कि दिल की अथाह गहराइयों से इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुश्ताक मिराज साहब जब तशरीफ़ लाए बाग में तूफ़ान की तरह आए, और बड़े बड़े टीले और पहाड़ उस तूफ़ान के आगे तिनकों की तरह बह गए, और इस तरह से बैठ गए। आज वो मुझे पहाड़, वो टीले, वो नज़र नहीं आ रहे हैं, वो इस समुद्र में मुझे गर्क और डूबे हुए नज़र आते हैं। इस पे मैं मुश्ताक मास्टर आपको सलाम पेश करता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला के फैसले हैं कि अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहे अल्लाह लेते हैं, उसमें बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बस्ती हल्के के भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि बस्ती हल्के में की सिचुएशन किसी से पोशीदा नहीं है, सबके सामने है, लेकिन बस्ती हल्के के लोगों ने आपके इंतखाब में जिस ज़र्फ़ का मुजाहरा किया और जिस सियासी बेदारी का मुजाहरा किया, इस पे मैं बस्ती हल्के के लोगों को सलाम पेश करता हूँ। और फिर ये कि ये बात बिल्कुल आज़म मिनाल शम्स है कि जो हुकूमत, जो सियासी पार्टी जिसकी 5 साल हुकूमत रहती है, या जो बरसर इक़्तिदार रहती है, या जो शख्स बरसर इक़्तिदार रहता है कि कोई उसके पास पोर्टफोलियो होता है, तो अरसा 3 या 4 साल गुजरने के बाद लोग उससे नाराज़ होते हैं और उससे दूर चले जाते हैं, दूर जाते रहते हैं। लेकिन ये हमारे हल्के में भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मैं मुश्ताक मिराज साहब को इसलिए कि इन्होंने जब से कदम रखा गुज़श्ता 4 साल पहले, यानी सिलेक्शन से पहले जब ये तशरीफ़ लाए, तो इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे और इनकी अपनी बसीरत की बुनियाद पे और इनकी सियासी बेदारी और मेहनत की बुनियाद पे आप सारे लोग न सिर्फ
जिन्होंने इंतखाबात में इनका साथ दिया था वो आज भी इनके साथ हैं और मौजूद हैं, बल्कि आपने उसमें और इजाफा किया है। पिछले इलेक्शन में अगर इन्होंने 26,000 वोट आप लोगों ने मुश्ताक नाज साहब को दे के कामयाब किया और इन्होंने लिए, अब की बार मुझे इंशाल्लाह कम हो गए 36,000 से ज़्यादा मुझे उम्मीद है, जिस तरह से कि आप लोग इनके साथ वो मौजूद हैं। इस पे मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और ये भी जिस तरह मुश्ताक नाज साहब ने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह पाक के सामने हम बड़ा बोल नहीं बोलते, लेकिन इंशाअल्लाह अब की बार भी तीनों हलकों में शर्की, वस्ती और गरबी मुस्लिम लीग नून भारी हैसियत से कामयाबी और मैंडेट लेगी। और मुश्ताक नाज साहब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनसे मुस्तकबिल में भी इससे बेहतर इंशाअल्लाह खिदमात और आप लोगों के जो मामलात और मसाइल हैं उनके हल के लिए इंशाअल्लाह शबर अपनी काविशें जारी रखेंगे। इन्हीं गुज़ारिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और मुश्ताक नाज साहब को एक बात, ये बात कि मुश्ताक नाज साहब अब पिछले इलेक्शन में तो शायद हम आपके साथ कुछ नहीं कर सके, लेकिन इस बार अगर आपको हमारी भी बस्ती हल्के में ज़रूरत पड़ती है तो बस्ती हल्के के भाइयों से माजरत के साथ मेरी ख्वाहिश है कि हम आके वहाँ अपने बस्ती हल्के के भाइयों से वो उनको मुखातब करके जो शर्की से वोट लेके जाते रहे और उन्होंने शर्की के लिए भी कुछ नहीं किया और बस्ती के लिए भी, हम उन्हें कहेंगे कि हमारी बाजी वापस करो। बाजी समझ देना, हम कहते बाजी वापस करो, मुश्ताक साहब को वोट दो, हम आए आप चीफ फार्मियाजर भी हैं, तो कहा था जी कि बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। 4 साल हो गए, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। फिर उसके अलावा ये कहा गया था जी कि एहतसाब होगा, वो भी 4 साल की उसी तरह की सूरत हाल है। फिर गवर्नेंस के हवाले से बात हुई थी, चले आपके हल्के के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, स्कीमें भी हो रही हैं, काम हो रहे हैं बिला तकसीद, लेकिन बाकियों की वही मुरब्जा सियासत जो 70 साल चली आ रही है। तो क्या तब्दीली है, आगे लोग किस बुनियाद में आपके साथ चलेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमने बाकायदा अमली काविश की और आपको आप भाइयों के इल्म में होगा कि हमने बल्दियाती इलेक्शंस के इनेकाद के लिए जो तमाम रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की और उसके बाद हमने नए हल्का बंदियाँ की और हल्का बंदियों के बाद वोटर लिस्टें बनाई। लेकिन ज़रा एक इतना बड़ा प्रोसेस करने के बाद फिर आपको पता है वो मामलात कोर्ट में चले गए। जब आपको नेचुरली ये होता है जब आपकी आबादी बढ़ जाए, आपकी ये जितनी भी हल्का बंदियाँ हैं, जितनी भी यूसीज हैं, ये तकरीबन 1987 यानी आज से वो 23 कितने साल ही 33 साल पहले ये हल्का बंदियाँ हुई थी, ये जो यूसीज बनी है। और 33 साल के बाद हमने जो काविश की तो हमने उसको अदालत ने फिर स्ट्राइक डाउन किया और उन्होंने कहा कि इसको असर नो इस प्रोसेस को शुरू किया जाए। और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन के साथ सारी चीज़ें जो है ना हमें वापस भेज दिया केस, तो हम अदालती उसके अहकामात की रोशनी में फिर ज़रा इतना बड़ा प्रोसेस जो है ना फिर इस टेन्योर में हमें मुश्किल नज़र आता है। लेकिन हम इब्तदाई काम करेंगे। हमने ये बात नहीं है कि मुस्लिम लीग ने बल्दियाती इलेक्शन, बल्कि ये कंपलसरी है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो हमने अपनी ताई कोशिश की है, ज़रा अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों को उसमें से कुछ सकम लगे, कोई लोगों की ख्वाहिशात के ऊपर उन्होंने उसको अपना हल्काबंदियों को जो है वो ख़त्म किया, मनसूख किया। तो इंशाल्लाह ये काम लगा हुआ है और हमने इब्तदाई तकरीबन 80% काम कर चुके हैं। जो 20% कहीं कमी कोताही है वो भी पूरी करेंगे और बिलाखिर जो है वो बल्दियाती इलेक्शन होंगे। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगी कि आज़ाद कश्मीर एक बहुत छोटा सा खिता है, तो कोई इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है कि जहाँ पर आपकी हुकूमत भी हो और पैरेलल जो है ना बल्दियात का सिस्टम ना हो तो नहीं चल सकता। कराची और पाकिस्तान में भी आपको पता है बरस इलेक्शन नहीं होते रहे, लेकिन पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का मुल्क है और आज़ाद कश्मीर में 40 लाख आबादी है, यानी किसी एक बल्दिया से भी हमारी आबादी कम है। लेकिन इसके बावजूद हम अपने उसको पूरा करेंगे। गवर्नेंस के हवाले से जो आपने बात की है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन में आप भाई हैं, एक सहाफ़ी उनका भी निगाह रखता है और उसकी उनका आपकी सलाहियतों के हम लेकिन हमने वो लूट मार का कल्चर जो है ये देखें उसको ख़त्म किया है। अब ऐसा ना कि हमारी आप डेवलपमेंट की स्कीमें यहाँ पर तो गोलियाँ लगती थी, मैनेज होते थे। आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट के किसी अफसर को बुला के आप दिन भर बैठे रहते हैं। मुझे आप बताएं इस 19 जुलाई 2016 के बाद यहाँ पर क्या उससे पहले क्या होता था? यहाँ पर एक्सचेंज के साथ बैठ के, एडीज के साथ बैठ के
MLA जो है और वज़ीर वो पहले अपना कमीशन तय करता था और उसके बाद फिर अगर कहीं किसी जगह पर कुछ लगाना होता था तो उस तरह लगाता था। और मैं ये कोई ऐसी बात नहीं करूँ, ये राजा सदीक साहब ने सारी ज़िंदगी अपना इस दश्त की सयाही में गुजर बसर की है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई अफसर, मेरा ये दावा है, कोई आप यहाँ से हमें अफसर आपको साथी कहते थे, यहाँ पर तो सियासी कारकुनों की जो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, उनके पेट्रोल जो है ना ये अस्पतालों से जाते थे और एडीज के दफ्तर। कोई शरीफ अफसर जो है ना अपनी जेब में तो 200 से ज़्यादा पैसे रख के नहीं चलता था बटवे से, कि कोई जाला आके उठा के उसकी जेब से आधे पैसे निकाल लेगा। तो क्या आपको ये कल्चर ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? आज को किसी की जरूरत है कि किसी जाके अफसर से कहे, हॉस्पिटल से कहे कि मरीजों के जनरेटर का जो है ना पेट्रोल है वो मुझे दें, मैं अपनी गाड़ी में डालूंगा? नहीं है। किसी में जरूरत है जो ये कहे आज कोई अफसर कि मैं जी फलां वज़ीर या फलां MLA को जो है ना कमीशन देता हूँ, मुझे बताएं अगर आपके पास कोई है। आप किसी, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे आज़ाद कश्मीर में मैं आप जाएँ कहीं स्पेसिफिक, लेकिन मैं अपनी बात नहीं करता हूँ कि मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से मुस्लिम लीग नून का मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि कोई अफसर ये नहीं कह सकता कि किसी तकर्री, किसी तबादले, किसी मेरे कारकुन में सारे सफ़ेद पोश हैं। मेरे साथ को ये बड़े बड़े जो है ना जो सरमायादार हैं, आप मुझे देखें कि तमाम सियासी जमातों के साथ सरमायादार लगे हुए हैं, जो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हैं, उनकी पूरी एक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। आप मेरे इन सियासी मुझे बताएं कोई एक ठेकेदार ठेका लेने और कोई सरमायादार मेरी बात मुझे बता दें। ये सारे मेरे साथी बैठे हुए, इसके अलावा भी बात सब सफ़ेद वो लोग जो जिनके घर में बड़ी मुश्किल से वो खाना पकता होगा वो मुस्लिम लीग के अंदर है। हमारी सफ़ों में या मुझे शहीद इनकलाबी की कोई इसके अंदर आपको कोई सरमायादारी की झलक नज़र आती है? या जावेद एडवोकेट हमारे BDA के चेयरमैन हैं, कोई सरमायादारी, कोई ठेकेदारी, कोई बड़ा कारोबार कोई दिखा दें? हमारे यहाँ पे अपना जनरल सेक्रेटरी ज़िले के जनाब मुशीद आलम साहब, आप उनके अंदर दिखाएं, बिल्कुल सफ़ेद पोश सियासी कारकुन हैं। जनाब राजा इम्तियाज़ ताहिर साहब हैं, आप अल्लाह कर रहे हैं, हाँ इनका अल्लाह ताला ने इनको मेहमानवाली भी दी है और दस्तरखान भी दिया हुआ है हम उसे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि किसी इस गवर्नमेंट से क्या फ़र्क? ये अपनी ज़मीन पे यानी अपना दुकान तामीर करने से इस वक्त तासुर, यही बात है, यही है मलकियत है। मैं BDA के चेयरमैन है, मैं उनसे ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की साथ से कहता हूँ कि थाना कोई सिक्योरिटी की अलामत नहीं है उसके सामने, इस मेरे भाई के उसके ऊपर एतराज़ात लगाए हुए हैं। तो हम तो ये जो जायज़ काम है, हम कानून की इतनी पाबंदी करते हैं कि सफ़े अव्वल का हमारा ये सियासी रहनुमा अपनी जायज़ लेजिटिमेट खरीदी हुई लीगल ज़मीन के ऊपर वहाँ तामीर नहीं कर सकता। आप ये बताएं कि इससे ज़्यादा मुझे, हमने पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, तो इससे ज़्यादा क्या आपको यानी करप्शन आपको कहाँ नज़र आ गई है? हमारी स्कीमें ग्राउंड के ऊपर लग रही हैं, ये सारी इसी का नतीजा है। मैं भी अगर खाता होता तो आज मुझे मेरे बुजुर्ग राजा सदीक साहब यहाँ चौक में खड़े होके 4 जो है ना मुझे गालियाँ दे रहे होते। यही बात है ना, इनसे कोई ढकी छुई ये किसी का लिहाज तो नहीं करते अगर कोई। लेकिन अगर आज 80 साल की उम्र में इतनी सख्त तबीयत का एक सॉलिड ठोस सियासी रहनुमा हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, तो वो इसी बात पे हो रहे हैं ना कि यहाँ को तब्दीली। तीसरी बात आपने क्या कही थी जी? एहतसाब। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि एहतसाब, मैं आपके सामने एतराफ़ करता हूँ कि वो हम नाकाम हुए उससे। लेकिन जो चीज़ जो हमारा क्रेडिट है आपको बताएंगे, जहाँ नाकामी है उसको छुपाएंगे, नहीं छुपाएंगे। एहतसाब ये जितने करप्ट लोग अनासर थे उन्होंने आज़ाद कश्मीर के सरमाए को लूटा, और मैं बबाग दुहल कहता हूँ कि हम एहतसाब करने में नाकाम हुए। ये बिल्कुल कल मुझे पता है कि राजा सदीक साहब की जो शमूलियत की मेरे लिए सबसे बड़ी इस वक्त, अगर ट्रंप भी मर जाए तो मेरे लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि राजा सदीक साहब वो हमारे साथ शामिल हुए। ट्रंप की खबर शायद मुझे मुतासर ना करेगी मेरे लिए खबर, लेकिन मुझे पता है कल के अखबारों में हेडलाइन यही होगी एहतसाब जो है उसमें हम नाकाम हो गए। हम एहतसाब में नाकाम हो गए, वज़ीर इत्तलात का एतराफ़ जुर्म तमाम अखबार की हेडलाइन। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि उसमें हम हमारी खुदाई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसमें मुखलिस थे। उनका ये कहना था कि हम पहले एहतसाब का ये जो एक्ट है इसको दुरुस्त करें, और चूँकि हम किसी ऐसे यहाँ पर जिस
मैं आपको पूरे केसेस बताऊं, जिसको आप हाथ डालते हैं वो फिर कल अदालतों से बेगुनाह होते आता है। तो हम चाहते थे कि कोई अच्छा बेहतर करें, फिर हमारे ऊपर दबाव आया कि जी उधर साहब का नैब का जो है ना दायरा कार इधर तक बढ़ाएं। हमने कहा जी वो तो हम बिल्कुल ओवर अवर डेड बॉडी वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो आज़ाद कश्मीर के लोगों की जो जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर किसी को स्टेप ओवर होने की इजाज़त नहीं देंगे। ये हमारा बिल्कुल कुल्ली इख्तियार है, चाहे वो कोई भी एक्ट हो, हम अपनी मर्जी से उसको लाएंगे जो हमें समझेंगे कि आज़ाद कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए इसमें हमें नाकामी ज़रूरी है। लेकिन हमने इसलिए नहीं कहा कि लोग ये ना समझे जिस तरह एक एहसाब का ड्रामा पाकिस्तान में रचाया जा रहा है। हम वो नहीं चाहते थे कि रोज़ जो है अपने मुखालफिन के खिलाफ करें या आपको एक बंदा जो ना घड़ी में नज़र आए, दूसरा नज़र आए, वो उस चीज़ को जो हम अवॉइड करना चाह रहे थे। लेकिन बिल्कुल ठीक बात है, हम एहतसाब नहीं कर सके 4 साल के बाद। लेकिन अभी मैं प्राइम मिनिस्टर से मैं गुजारिश करूँगा कि इस 1 साल के अंदर भी अगर एहतसाब एक्ट में तरमीम करके उसको सख्त बनाएं, उसमें कोई दांत डालने होंगे, क्योंकि हम उसको ये अपना विक्टिमाइजेशन की तरफ भी नहीं ले जाना चाहते और हम उसको ये भी नहीं करना चाहते कि जो चोर और डाकू जो है ना वो सर्टिफिकेट अदालतों से लेकर दयानत के चले जाएं। तो इसलिए हमने ये लोगों पर भी छोड़ा हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस तरफ मज़ीद आगे बढ़ें। अच्छा मुश्ताक साहब